Hello students, once again all of you are welcome to our class of English and we are learning our chapter number 4. Chapter number 4 from the book Beehive and the chapter is A Truly Beautiful Mind. We are reading A Truly Beautiful Mind. So the chapter Truly Beautiful Mind is about a scientist Einstein. So here both the aspect of a scientist is shown. Which type of aspect? Like his scientific attitude, first of all, scientific attitude, that how he invented a very useful equation. He also find the theory of relativity and gravity, which is very accurate at the time of solar eclipse. So in this way he contributed a lot by innovating new theories in the field of physics. So this scientific attitude is highlighted. Next is humanitarian attitude is also highlighted. How? That he also worked for the well-being of human. For the welfare of human being, he worked a lot. For their peace, for their liberty, for the democracy, he worked a lot. For that purpose, he also stopped doing his scientific innovation at the very last hour of his life because he loved peace, he loved democracy. So all the two aspects of a scientist is highlighted. That's why the chapter is named as A Truly Beautiful Mind. Otherwise we can also say it that a very intelligent mind, a very intelligent person, because not only the scientific aspect has been shown but humanitarian aspect is also shown of a person. That's why he is with a very beautiful mind. Now we have read summary, theme, message, some of the word meaning also we have read. So let us read now and solve some of the question. These are your textual questions. As these question you have to write only in fill-ups. That's why you can do in your textbook only. ठीक है, टेक्स्ट बुक में ही आपको करने हैं ये. जैसे कि some of the headings is given here for the paragraph. So now you have to write numbers of the paragraphs for each title against the heading. यानी कि किस पैराग्राफ में क्या हेडिंग दी हुई है उसके लिए आपको लाइन बतानी कि पैराग्राफ का नंबर लिखना है. सबसे पहले आइंस्टाइन की इक्वेशन, इन विच पैराग्राफ इट इज गिवन? इन पैराग्राफ नंबर 9 इट्स गिवन. ठीक है. आइंस्टाइन मेट्स हिज फ्यूचर वाइफ इज मिलेविया मरिक एंड where he met, in which paragraph we find the information? It's paragraph number 7. The making of a violinist, यानी कि वो violinist बन गया at the age of 6 when his mother asked him just to learn to play violin. Einstein's equation he gave, which is E is equal to mc2. So these equations find the relation in our paragraph number 9. Einstein meets his future wife. Of course, I tell you that it's paragraph number 7, and in paragraph number 3 we find his making of a violinist. Mileva and Einstein's mother met in paragraph number 10, and the letter that he wrote for launching the arms race. यहाँ पे arms का मतलब क्या है? Weapons होते हैं, हथियार होते हैं. ठीक है, क्या होता है? आर्म्स का दूसरा नाम क्या है? वेपन्स. वेपन मतलब हथियार होते हैं. ठीक है. देखो, आर्म का मतलब तो बाजू होता है, लेकिन जब हम इस आर्म्स का प्लूरल आर्म्स बना देते हैं तो हम क्या बोलेंगे? उसको वेपन बोलेंगे, हथियार बोलेंगे. ठीक है. सो इन विच पैराग्राफ ही रोट द लेटर? इन पैराग्राफ नंबर 15. अ डेस्क ड्रॉवर फुल ऑफ आइडियाज. उसका वो डेस्क ड्रॉवर जिसके आइडियाज बिल्कुल फुल, जो आइडियाज से भरा पड़ा है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है पैसेज नंबर 8 में. Marriage and divorce, about Einstein's marriage and divorce we get the information in paragraph number 11. So all the questions first and second, for these two questions you will write only in your textbook, not in notebook. ठीक है, टेक्स्ट बुक में लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना, क्योंकि आप लोग फिर पजल हो जाते हो क्या करना है क्या नहीं करना. ऑल्दो मैं वीडियो में आपको बोल के बताती भी हूँ. देखो बेटा, डोंट ट्राई टू बी कन्फ्यूज. आपको हर चैप्टर में या फिर जो भी पोयम है
20 के नियर अबाउट तो वर्ड मीनिंग, हाँ इससे कम भी हो सकते हैं, 15 to 20 मैंने बोला हुआ है। और क्या बोला हुआ है, थीम लिखना है, थीम या मैसेज में से कोई एक चीज़ लिखनी है, टाइटल नहीं लिखना, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर लिखना है बस, ठीक है। समरी अपने शब्दों में केवल 1 पेज की लिखनी है, 1 या 1.5 पेज की लिख लेना। उसके बाद टेक्सचुअल क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चन में अगर कोई टेबल में आया हुआ है तो वो टेक्स्ट बुक में ही कर देना, ठीक है। अगर किसी में ट्रू फॉल्स फिलअप है वो भी आप अपनी किस में करोगे, टेक्स्ट बुक में। अगर ग्रामर वाली एक्सरसाइज है वो भी कहाँ करोगे, टेक्स्ट बुक में करोगे। सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, जो कि छोटे या शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों तरह के हो सकते हैं। सो हु हैड दिस ओपिनियन अबाउट आइंस्टाइन, कि वो बोरिंग है, उसकी प्लेमेट्स उसके साथी सोचते थे वो स्टूपिड है, कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, उसके हेडमास्टर बोलते थे। वाई, बिकॉज एवरी टाइम ही वॉज नॉट एबल टू गिव आंसर, ही वॉज इन क्लैश विद टीचर्स, दैट्स वाई headmaster told that he was a stupid and he could never achieve any success in his life. He was a freak. His mother thought that he was a freak. Why? Because of the abnormal size of his head, the mother called him a freak. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यस दिस क्वेश्चन यू विल राइट इन योर नोटबुक, यही क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट द रीजन फॉर द फॉलोइंग आर, क्या क्या रीजन है। सबसे पहले आइंस्टाइन लिविंग स्कूल इन मुनीक फॉर गुड, आइंस्टाइन को लगा कि मुनीक का स्कूल छोड़ने में ही भलाई है। क्यों, क्यों बेटा, क्योंकि ही लेफ्ट द स्कूल इन मुनीक बिकॉज ही डिडंट लाइक द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, उसको स्कूल का डिसिप्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, उसको स्कूल की रेजिमेंटेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एंड थर्ड थिंग, ही वाज ऑफन क्लैश विद द टीचर्स, अक्सर टीचर्स के साथ उसका झगड़ा होता रहता था, इसलिए उसने सोचा कि मुनीक का स्कूल छोड़ देना चाहिए। मुनीक इज़ अ प्लेस इन जर्मनी, MUNICH, मुनीक इज़ अ प्लेस इन जर्मनी में एक जगह है, और क्योंकि वो जर्मनी में पैदा हुई इसलिए जर्मनी के स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन उसको वो स्कूल पसंद नहीं, क्योंकि देयर वाज सो मच डिसिप्लिन है स्कूल में, और क्या है वहाँ की रेजिमेंटेशन से उसको नफरत है, ठीक है, और टीचर से हमेशा क्लैश यानी कि झगड़ा करता रहता था। रीड सेकंड क्वेश्चन, आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन इन मुनीक, मुनीक की बजाय वो स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहता था। वाई, क्यों, क्यों भाई, बिकॉज एल्बर्ट्स पेरेंट्स मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे वो मिलान जगह पे आ चुके थे अब, और उन्होंने अपने बेटे को अपने रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशंस, प्रोलॉन्ग का मतलब लॉन्ग डिस्कशन होने के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, आइंस्टाइन की विश को परमिशन मिल गई कि हाँ तुमने जर्मनी स्पीकिंग करने वाले यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है, और वो कहाँ है, वो स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख यूनिवर्सिटी जहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाती है। क्यों गया है वहाँ पे, एक्चुअली इट वॉज मोर लिबरल दैन मुनीक, क्योंकि मुनीक यूनिवर्सिटी से वहाँ पे बहुत ज़्यादा आज़ादी है, ठीक है। देयर ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक ऑल्सो रिकमेंडेड, लेकिन अदर्स यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेविया एंड एले, एले का मतलब कहते हैं कंपेनियन, आइंस्टाइन को मिलेविया मेरिक के रूप में अपनी एक साथी मिली कैसे। सो आइंस्टाइन सॉ इन मिलेविया मेरिक एंड एले अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, क्योंकि वो लड़की फिलिस्टीन्स के बिल्कुल खिलाफ थी। क्या होते हैं फिलिस्टीन, द पीपल हु हेटेड आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक, हु हैड नो इंटरेस्ट इन आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर, जो आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर वो बिल्कुल वर्थलेस समझते हैं, ठीक है, वो लोग होती है फिलिस्टीन्स। तो वो लड़की बिल्कुल अगेंस्ट थी फिलिस्टीन्स की, उन लोगों के अगेंस्ट थी जो कि उसकी फैमिली में थे। क्यों, क्योंकि फैमिली में जो आइंस्टाइन था उसकी किसी से नहीं बनती थी, यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ भी वो हमेशा ओड पोजीशन पे होता था, एट ओड्स, ओड्स का मतलब क्या होता है, नॉट इन गुड रिलेशन, ना परिवार वालों से अच्छे रिलेशन, ना यूनिवर्सिटी वालों से अच्छे रिलेशन। सो इन मिलेविया ही फाउंड अ वेरी क्लेवर क्रीचर हैविंग द सेम टेस्ट एज अ साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट के रूप में उसकी जो टेस्ट थे वही मिलेविया की टेस्ट थे, दैट्स वाई ही फाउंड हर एम्पली डिजर्वेबल क्रीचर। फोर्थ क्वेश्चन इज दैट
व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टाइन। तो ये सभी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, इसके बेस पे आपने आइंस्टाइन के कैरेक्टर के बारे में लिखना है। वी केम टू नो दैट आइंस्टाइन वॉज अ वेरी जीनियस पर्सन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या पता चला हमें कि वो जीनियस पर्सन है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें कैपेबिलिटीज़ हैं टू अचीव हिज टारगेट। ठीक है, तीसरी बात, ही हैज़ हिज ओन व्यूज़ अबाउट द लाइफ। और चौथी बात, ही लाइक्ड फ्रीडम वेरी मच। फ्रॉम ऑल दीज क्वेश्चंस वी केम टू नो सम ऑफ द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज कैरेक्टर। कौन सी? जीनियस है, कैपेबिलिटी टू अचीव द टारगेट, नेक्स्ट ऑन व्यू ऑफ लाइफ, एंड नेक्स्ट दैट ही लव्ड फ्रीडम वेरी मच। ठीक है, let's move to next question. Question number 4 is, why did Einstein call his desk drawer at the patent office and why? भाई आइंस्टाइन अपने डेस्क जो ड्रॉर है, जो डेस्क की दराज है, टेबल की जो दराज है, उसको क्या बुलाता है और क्यों? देखो, आई टोल्ड यू दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन आइंस्टाइन ज्वाइंड अ पेटेंट ऑफिस एज अ टेक्निकल ऑब्जर्वर। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर के रूप में उसने एक पेटेंट ऑफिस को ज्वाइन कर लिया था। तो वहाँ पे उसका एक डेस्क था, उसकी एक टेबल थी। उस डेस्क की ड्रॉर को, उस टेबल की ड्रॉर को वो क्या बुलाता है, ये हमने बताना है। देन आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स बोलता है। द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स की थियोरीज को बनाने वाला एक ऑफिस, एक ऐसा खोजबीन करने वाली जगह जहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड थियोरीज बनाई जाती हैं, वो ये बोलता था। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज आइडियाज इन सीक्रेट। वास्तव में क्या था, वो किसी की इंस्ट्रक्शन पे नहीं, बिल्कुल सीक्रेटली काम कर रहा था साइंस के लिए, फिजिक्स के लिए। एंड हिज ड्रॉर ऑल द एविडेंसेस विच कुड रिवील द सीक्रेट, और उसके ड्रॉर में, उसके दराज में वो सभी सबूत थे। एविडेंस क्या थे? सबूत थे, जो कि शो करते थे, जो कि उजागर कर सकते थे उसकी सीक्रेट को। रिवील का मतलब क्या होता है? टू शो करना, जो कि इसके सीक्रेट को दिखा सकते थे। इसलिए वो क्या बोलता है, एक ऐसी ब्यूरो था, एक ऐसा ऑफिस था, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उसकी रिसर्च की जाती थी, और अगर कोई वहाँ पे आता और देखता तो उसकी सीक्रेट भी खुल सकते थे। वो इसीलिए इसको बुलाता है ब्यूरो, क्योंकि ब्यूरो क्या होता है, एक ऐसा ऑफिस होता है जिसमें क्या, खोजबीन होती रहती है। ठीक है, जाँच चलती रहती है। तो इसीलिए उसका डेस्क भी क्या था, एक ऐसा जाँच ऑफिस था जो उसकी सभी सीक्रेट को बता सकता था। Question number 5. Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? Einstein Franklin Roosevelt को लेटर क्यों लिखता है? Who was Franklin Roosevelt? At that time, Franklin Roosevelt is the president of USA. That's why. ठीक है, तो वो जर्मनी में रहता था, तो उसका अमेरिका के राष्ट्रपति को लेटर लिखने का क्या मतलब है? एक्चुअली बेटा, विद द emergence of Nazis in Germany, Einstein immigrated to USA. ठीक है, जर्मनी में जब नाजी लोग आ गए थे, नाजी पार्टी बन गई थी। इमरजेंस का मतलब क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिन, ORIGIN। ठीक है, जर्मनी में जब नाजी लोगों का ओरिजिन हुआ, देन आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू यूएसए। तो आइंस्टाइन कहाँ चले गए थे? यूएसए में चले गए थे। इट वॉज द फैक्ट दैट नाजी हैड द एबिलिटी टू डेवलप द एटॉमिक बम। देन Einstein get to know that Nazi people had the ability to develop the atomic bomb. उसको पता चला कि वो एटम बम बना सकते हैं। एंड बीइंग अ साइंटिस्ट ही नो इट वेरी वेल दैट इट कुड डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, कि वो पूरे संसार को भी बर्बाद कर सकता था। सो ही वॉर्न फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इन हिज लेटर। इसलिए उसने अपने लेटर में फ्रैंकलिन को वार्निंग दी है, किस चीज़ के बारे में? दैट यू हैव टू मेड एन इंस्टीट्यूट, we have to made a united organization which could prevent all those experimentation regarding atom bomb. Let's read now question number 6. How did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? जब हिरोशिमा और नागासाकी, एक्चुअली बेटा दीज आर द 2 cities in Japan. So जापानीज सिटी है ये, यहाँ पे बॉम्ब गिराया था ड्यूरिंग आवर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हैव रिमेंबर्ड दैट कि जब अमेरिका ने, यूएसए ने बॉम्ब गिराया, एटम बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो आइंस्टाइन ने कैसा रिएक्ट किया?
द एटॉमिक बॉम्ब डिवास्टेटेड द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। सबको पता है कि जो एटम बम थे उन्होंने बर्बाद कर दिया। डिवास्टेटेड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉयड होता है, ठीक है, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय कर दिया था जापानीज सिटी हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों शहरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट ही वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इस डिस्ट्रक्शन से वो इतना ज़्यादा हिल गए, इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए दैट ही रॉट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, तो कि उन्होंने एक पब्लिक नोट लिख डाला, पब्लिक की तरफ से एक लेटर लिख डाला यूनाइटेड नेशन को, ठीक है, कि आगे से ये सब नहीं होना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। I hope that these questions are enough for you. So please try to write all these questions, question number 3, 4, 5, 6 in your notebook. Till then.